Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goel. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation. In this session, we'll be talking about Turing machines. More specifically, we'll be talking about linear bounded automata. We'll also talk about universal Turing machines. We'll also talk about Turing hypothesis, and further we'll also talk about halting and non-halting Turing machines in this sessions. But before we proceed, let us briefly look at what we discussed about Turing machines in the previous session. We saw the structure of a Turing machine. We saw that it has an input tape, then it has a read-write head, and also it has a finite control. Three interesting things about Turing machines are, first of all, the input tape that we have is an infinite tape, right? The input tape is basically infinite. Then the read-write head can do both reading as well as writing, and read-write head can also move in both the directions. So these are the three interesting facts about Turing machines. One is the input tape is infinite. Second is the read-write head can move in both the directions. And then third is the read-write head can do both reading as well as writing, right? And we also have a finite control over here that we have already discussed. Okay. Now, we also talked about the heptatuple of the Turing machine, which is Q sigma delta Q naught F B and tau, right? So when I say Q, that is the set of states, sigma is my alphabet, then delta is my transition function. Then when I say about Q naught is basically my initial state, F is my set of final states, B is the blank symbol, and then tau is basically tau or gamma is basically my tape alphabet, right? So that was basically my heptatuple. जब मैं बात करता हूँ NTM की, तो हमारे पास में जो transition function होता है वो non-deterministic होता है. When I talk about DTM, then the transition function is going to be deterministic. So अगर मैं DTM के transition function की बात करूँ तो उसका transition function कैसा दिखेगा? Q cross tau to Q cross tau cross left or right. And when I move towards NTM, the transition function will change to Q cross tau to the power set of Q cross tau cross left slash right. So this is basically the major difference between NTM and DTM. And we also saw that the transition functions, although they are different, their powers are exactly similar, although we have not given any proof for the same, but it has been mathematically proven that the powers of deterministic Turing machines as well as non-deterministic Turing machines is exactly equal. Their power is exactly equal. There is no change in the power, but their transition functions are different. So just like NF and DFA, the transition functions are different, but their power is exactly same. All right. So that is what we discussed about Turing machines till now. Let us see the next thing, that is basically our Turing hypothesis. So Turing hypothesis says that any computation that can be carried out by mechanical means can be performed by some Turing machine. This is a very, very strong statement. This statement was made somewhere in 1940s, and till now no one has been able to prove this statement wrong, which is a very, very big thing, right? We are saying it as a hypothesis. There is no proof for this statement. इस statement का कोई भी proof नहीं है. Turing gave his hypothesis and no one has been able to prove it wrong. तो इसलिए हमने क्या मान लिया कि ये सही है, right? इतने सालों में आज तक इसे कोई गलत नहीं प्रूव कर पाया, तो इसलिए हमने मान लिया कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी कंप्यूटेशन जो मैकेनिकल मींस से करी जा सकती है वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है. इस स्टेटमेंट के फेवर में जो पॉइंट जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैकेनिकल मींस का मतलब जो आज की डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है वो ट्यूरिंग मशीन भी कर सकती है. मतलब ट्यूरिंग मशीन से कंप्यूटर सिस्टम को सिमुलेट करती हैं, ये स्टेटमेंट कन्वे करना चाहती है. अब अगर हम बात करें आज तक ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो टास्क कर सकता है, ऐसा कोई भी टास्क नहीं है जो ट्यूरिंग मशीन ना कर सकती हो. मतलब पहली बात, जो कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है वो ट्यूरिंग मशीन कर सकती है. जो कंप्यूटर सिस्टम अगर ऐसा कोई भी टास्क नहीं बना है जो कंप्यूटर सिस्टम कर सकता है और ट्यूरिंग मशीन ना कर सकती हो, ये बिल्कुल
प्रूवन फैक्ट है, मतलब प्रूवन इन द सेंस कि ऐसा कोई टास्क हमारे पास नहीं है जिससे हम ये बात कह पाए। ऑलराइट, देन हमने ट्यूरिंग मशीन्स में मल्टीपल वेरिएशंस भी किए, लेकिन उन वेरिएशंस के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो पाया कि हम ज्यादा पावरफुल ट्यूरिंग मशीन बना पाए। जो हमने स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन डिस्कस किया है, जितने भी हमने वेरिएशंस करे ट्यूरिंग मशीन में, वो सारे के सारे वेरिएशंस कभी भी उसकी पावर को बढ़ा नहीं पाए। जितनी उसकी पावर पहले थी उतनी ही रही, भले ही स्पीड बेशक इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन पावर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई ट्यूरिंग मशीन में जितने भी वेरिएशंस करे गए उनके अंदर। ये बहुत 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 ही बड़ी बात है कि एक जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन बनाएगी, उसके बाद इतने सालों में हमने जितने भी वेरिएशंस करे, आज तक हम उसकी पावर को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, और कंप्यूटर सिस्टम भी वही कर पाता है जो कि एक स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन कर पाती है। ना तो हम जो कंप्यूटर सिस्टम नहीं कर पाता, कोई भी ऐसी एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करती है जो कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम तो कर पाएगा लेकिन ट्यूरिंग मशीन ना कर पाए। जो कुछ भी स्टैंडर्ड सिस्टम कर पाता है वो ट्यूरिंग मशीन कर पाती है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं वेरिएशंस की कि क्या क्या वेरिएशंस किए गए। ये वेरिएशंस जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन जनरल आइडिया ये है कि अगर एग्जाम में कुछ ऐसा पूछा जाए कि हमने ट्यूरिंग मशीन में ये वेरिएशन कर दिया, क्या पावर बढ़ेगी, आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड नो है, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल ट्यूरिंग मशीन आज तक नहीं बन पाया है। ये नाम आपको कोई भी ऐसा कुछ इसमें रटला लगाने का कुछ नहीं है, जस्ट एक बेसिक आइडिया देने के लिए मैं सारे नाम बता रहा हूं। थोड़ा सा आइडिया भी दूंगा आपको कि क्या है इनके अंदर, बट आपको ये सारी चीजों का कोई भी रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, तो बस आपको यह पता होना चाहिए कि ट्यूरिंग मशीन से ज्यादा पावरफुल मशीन हम आज तक नहीं बना पाए हैं। कोई भी वेरिएशन आए, आंसर इज इट इज नॉट पावरफुल देन ए ट्यूरिंग मशीन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूरिंग मशीन विद स्टे ऑप्शन। अभी तक हमारे पास क्या होता था, हम लेफ्ट जाते थे, राइट जाते थे, अभी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा स्टे करने का भी। हम उसी जगह पे रह सकते हैं, हम ना तो लेफ्ट मूव करेंगे ना राइट मूव करेंगे। दिस इज ऑल्सो अ वेरिएशन इन द ट्यूरिंग मशीन, बट पावर में कोई फर्क नहीं आता है। सिमिलरली ट्यूरिंग मशीन विद सेमी इंफिनिट टेप, अगर मैं ट्यूरिंग मशीन बना दूं सेमी इंफिनिट टेप वाला, सेमी इंफिनिट से मतलब क्या है, पहले मेरी ट्यूरिंग मशीन जो थी वो इंफिनिट थी दोनों एंड से। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि एक ही एंड से इंफिनिट होगी, तब भी पावर में कोई चेंज नहीं आता है। हमने इसकी पावर को डिक्रीज करने की कोशिश की, लेकिन इस केस में पावर सेम रहती है, कोई चेंज नहीं है। ऑलराइट, तो सेमी इंफिनिट टेप की भी पावर इज सेम। राइट, देन आता है ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन क्या है, यहां पर हम ट्यूरिंग मशीन का इनपुट जो है, इनिशियली जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन हमने डिस्कस की उसमें इनपुट जो है वो टेप पे रहता है। ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन में क्या रहेगा, जो आउटपुट जो इनपुट है वो एक सेपरेट फाइल में रहेगा। दैट्स इट, देयर इज नो चेंज। राइट, बट इससे भी पावर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगेन इनकी पावर सेम क्यों है ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं और इनके प्रूफ भी दे सकते हैं, बट इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एज फार एज गेट इज कंसर्न, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ढंग से याद होना चाहिए। वो स्टेटमेंट क्या है कि ट्यूरिंग मशीन में जितने भी वेरिएशंस किए गए उससे पावर ऑफ द ट्यूरिंग मशीन नहीं चेंज होती है। नाउ फिर से याद दिलाने के लिए कि पावर क्या होती है, पावर ऑफ अ मशीन इज बेसिकली द सेट ऑफ लैंग्वेजेस, द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अ मशीन कैन एक्सेप्ट एंड ऑटोमेटा कैन एक्सेप्ट। राइट, तो पावर जो है वो चेंज नहीं होगी मेरी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, अभी तक हमारे पास एक टेप थी, अगर मैं मल्टीपल टेप्स भी ले लूं तो पावर में कोई चेंज नहीं है। भले ही स्पीड बढ़ सकती है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन पावर में कोई चेंज नहीं आएगा। ऑलराइट, देन बात करते हैं जंपिंग ट्यूरिंग मशीन की। अभी तक हम एक एक स्टेप मूव करते थे, जंपिंग ट्यूरिंग मशीन क्या है, मल्टीपल स्टेप्स भी आगे मूव कर सकती है। जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ता था, अब मैं लिख सकता हूं 10 स्टेप्स आगे बढ़िए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स कैन आल्सो बी मेंशन्ड, दैट विल आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन। ऑलराइट, देन बात करते हैं नॉन इरेजिंग ट्यूरिंग मशीन की। ये ट्यूरिंग मशीन इरेज नहीं करेगी। इरेज का मतलब ब्लैंक नहीं लिखेगी, किसी भी स्टेट पे किसी भी टेप अल्फाबेट को रब करके ब्लैंक नहीं लिखेगी। अगर हम ये चीज इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो भी पावर में कोई चेंज नहीं आता है। ऑलराइट, ऑलवेज राइटिंग ट्यूरिंग मशीन। ऑलवेज राइटिंग ट्यूरिंग मशीन क्या हो गई, जैसे कई बार क्या होता है ट्यूरिंग मशीन में हम ए को रीड करके वापस से ए लिख देते हैं, इस तरह के ऑपरेशंस अलाउड नहीं होंगे। ऑलवेज राइटिंग कुछ ना कुछ उसमें हमेशा राइट करेगी, तो इस तरह से हम क्या कहेंगे, ऑलवेज राइटिंग ट्यूरिंग मशीन बोल देंगे हम इसको। ऑलराइट, देन आता है मल्टी डायमेंशन ट्यूरिंग मशीन। मल्टी डायमेंशंस का मतलब अभी तक मेरी ट्यूरिंग मशीन इनफाइनाइट थी दो एंड से, और बेसिकली ये 2 डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन थी। अगर मैं 1 डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन थी, मतलब दो एंड से इनफाइनाइट थी। राइट, 1D ट्यूरिंग मशीन ऐसी दिखती है, 1D टेप, सॉरी। सो टेप की जब हम बात करें तो 1D टेप है, ये 2 डायरेक्शन से इनफाइनाइट रहती है। अगर मैं मेरी ट्यूरिंग मशीन की जो टेप है उसको मैं 2D का कर दूं, तो अगर मेरी जो टेप है वो 2 डायमेंशनल हो जाए,
दो, और वो दोनों इस तरह से भी यहां से भी इनफाइनाइट ही रहेगी, राइट, 2D टेप भी मेरी इनफाइनाइट ही रहेगी। तो इसको हम कहेंगे मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। ऐसा करने से भी पावर में कोई चेंज नहीं आता है। आपको यहां पे एक चीज समझनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते थे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट तो मूव कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में अप एंड डाउन भी मूव कर पाएंगे। ऑलराइट, सो दिस इज मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, राइट। देन कम्स मल्टी हेड ट्यूरिंग मशीन। अभी तक हम क्या कर रहे थे, टेप ही के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, हेड के साथ भी चेंजेस कर सकते हैं, मल्टीपल हेड्स ले लेंगे। अभी तक एक हेड होता था, मैं 3 हेड 4 हेड भी लेके ट्यूरिंग मशीन बना सकता हूं। ऑलराइट, देन कम्स फाइनाइट ऑटोमेटा विद 2 स्टैक्स। ठीक है, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें, उसके पास मेमोरी नहीं थी। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में मैं 1 स्टैक दे दूं तो क्या बन जाएगा, पुश डाउन ऑटोमेटा। अगर मैं फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 स्टैक्स दे दूं तो मैं क्या बन जाएगा, ट्यूरिंग मशीन। या फिर मैं ये बोल दूं फाइनाइट ऑटोमेटा को क्यों दे दें, क्यों 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 बोल रहा हूं मैं, राइट, सो क्यों बोल रहा हूं मैं। सो फर्स्ट इज क्यू, QUEUE, नेक्स्ट इज हिंदी का क्यों। ठीक है, सो क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि 2 स्टैक से मैं क्या बना सकता हूं, क्यों, तो फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 क्यू इज बेसिकली माय ट्यूरिंग मशीन। एनपीडीए की बात करूं, एनपीडीए मेरे पास ऑलरेडी था, एनपीडीए के अंदर 1 स्टैक होती थी। अब अगर मैं उसके अंदर 1 स्टैक एक्स्ट्रा डाल दूं तब भी मेरे को ट्यूरिंग मशीन मिल जाएगी, क्योंकि 2 स्टैक से मैं क्या बना सकता हूं, क्यू बना सकता हूं। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आती है, यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन क्या है। देखिए, अभी तक हमने जितने भी ट्यूरिंग मशीन्स देखे, हाँ, वो कोई एक फंक्शनैलिटी कर पाती थी। जैसे कि हमने, अगर आपको याद है, जो प्रीवियस सेशन में हमने A⁴n B⁴n के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाया था, फिर हमने A की पावर n B की पावर n C की पावर n के लिए ट्यूरिंग मशीन बनाया। तो इस तरह से हम ट्यूरिंग मशीन्स मल्टीपल पर्पसेस के लिए बना सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी ट्यूरिंग हाइपोथेसिस में भी बताया कि जो कुछ भी एक मैकेनिकल कंप्यूटर कर सकता है वो सब ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ट्यूरिंग मशीन में आप एडर भी बना सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन में आप सब्सट्रैक्टर भी बना सकते हैं, ट्यूरिंग मशीन में आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आप डिवीजन भी कर सकते हैं, आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हैं। हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं। प्रूफ्स आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द गेट एग्जाम, राइट। हम सारी चीजों का प्रूफ नहीं कर रहे हैं अभी यहां पे। तो इन जनरल ट्यूरिंग मशीन इज सेड टू बी मैथमेटिकली कंप्लीट बिकॉज एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाय द ट्यूरिंग मशीन। बट हमने अभी तक जितने भी ट्यूरिंग मशीन पढ़े वो कोई एक ऑपरेशन कर पाती है, या तो वो ऐड करेगा, या सब्सट्रैक्ट करेगा, या डिवाइड करेगा, या मल्टीप्लाई करेगा, या A की पावर n B की पावर n एक्सेप्ट करेगा, या A की पावर n B की पावर n C की पावर n एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं किया है हमने कि मल्टीपल चीजें एक ट्यूरिंग मशीन कर पाए। बट अगर मुझे कंप्यूटर सिस्टम बनाना है, कंप्यूटर में तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ थिंग्स कैन बी डन। बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं उसके अंदर। तो वो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। All right, and that is where the universal Turing machine comes into the picture, right? वहां पर हमें यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कंसीडर करनी पड़ेगी। हमने अलग अलग ट्यूरिंग मशीन्स देखी, अब अगर मुझे उन सबको मिला के एक कंप्यूटर सिस्टम बनाना है तो वहां पर मुझे जरूरत पड़ेगी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की। ठीक है, तो अब यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन कैसे दिखती है। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन में हमारे पास वही फाइनाइट कंट्रोल है, वही रीड राइट हेड है, ये सारे रीड राइट हेड है मेरे, बट रीड राइट हेड भी मेरे पास 3 है और मेरे पास टेप भी अब 3 है। 3 टेप्स आर देयर इन दिस यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन। हम सिंगल टेप से भी बना सकते थे, लेकिन अगेन उसको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता। बट जैसे कि मैंने बताया, आप टेप्स के बढ़ाने से, रीड राइट हेड्स के बढ़ाने से कोई पावर में चेंज नहीं आता है, भले ही एफिशिएंसी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। जब मैं बोलता हूं एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, इसका क्या मतलब है, मतलब जो प्रॉब्लम आप मे बी शायद ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में कर पाते थे वो अब आप ऑर्डर ऑफ n में कर पाए, जो कि आप ऑर्डर ऑफ n क्यूब में कर पाते थे वो शायद ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में कर पाए या फिर ऑर्डर ऑफ n में कर पाए। एफिशिएंसी भले ही इंक्रीज हो जाए बट पावर सेम रहेगी। जैसे कि नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात करें या डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो वहां पर भी एफिशिएंसी भले ही नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की बेटर हो सकती है, लेकिन
पावर जो है वो एनटीएम और डीटीएम की हमेशा बराबर रहेगी। एफिशिएंसी से मेरा मतलब क्या है, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। पावर से मेरा मतलब क्या है कि वो कितने सेट ऑफ लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं टेप्स की कि इन टेप्स में क्या क्या रहेगा। तो जितने भी आपके ट्यूरिंग मशीन्स आपने देखे हैं अभी तक भी, वो सारे के सारे उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट एफ बी एंड टाउ और गामा, वट एवर यू से, वो आप यहां पर स्टोर कर देंगे। अगर आपको 10 चीजें करानी है तो 10 ट्यूरिंग मशीन स्टोर करें, अगर आपको 100 चीजें करानी है आप 100 चीजें स्टोर करें, 100 ट्यूरिंग मशीन स्टोर करें। आपको जितने काम कराने हैं उसके लिए अलग अलग ट्यूरिंग मशीन बना करके उनका रिप्रेजेंटेशन आप यहां स्टोर कर देंगे। नेक्स्ट, जो भी आपका इनपुट होगा वो टेप 2 पे रहेगा, और जब आप इनपुट पे ट्यूरिंग मशीन के बताए हुए ट्रांजिशंस लगाएंगे तो आपका इनपुट और आपका जो स्टेट है वो चेंज होगा। करंट स्टेट क्या होगा, मैं कौन से स्टेट पे हूं, मेरा टेप कैसा दिख रहा है, ऑलराइट, इस तरह की चीजें, राइट। जो मेरा स्टेट क्या है, मतलब अगर आप किसी भी स्टेट की बात करें, ट्यूरिंग मशीन के स्टेट की बात करें, तो आप कौन से मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी कि आप कौन से स्टेट पे हैं, आपकी टेप कैसी अभी दिख रही है, आप राइट मूव कर रहे हैं कि लेफ्ट मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ये स्टेट इंफॉर्मेशन जो है वो आप इस टेप पे स्टोर करेंगे। ऑलराइट, तो इस तरह से हमारे पास 3 टेप्स हो जाती हैं। ऑलराइट, और जितने भी आपने, जैसे मैंने कहा, जितने भी ट्यूरिंग मशीन्स आपके अलग अलग बने थे उन सबको आप यहां पर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से मैं एक यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को कंस्ट्रक्ट करता हूं। ऑलराइट, अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये आती है कि आप किसी भी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड, आप किसी भी ट्यूरिंग मशीन को एज अ स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, अ स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी ट्यूरिंग मशीन को एज अ स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट। आ रही है बात समझ में? वंस एंड जीरोस का स्ट्रिंग आप बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे तो हम इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं कि इसको स्टोर कैसे करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर में तो हम बाइनरी स्टोर कर सकते हैं, तो ट्यूरिंग मशीन को वंस एंड जीरोस की फॉर्म में कैसे स्टोर करेंगे वो ब्रीफली हम डिस्कस कर लें। वो कैसे करेंगे, हमारे पास हमें टपल पता है, क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट है, एफ है, बी है एंड टाउ और गामा, वॉट एवर यू से, आई से टाउ। ठीक है, नाउ क्यू मान लीजिए मेरे पास में 2 स्टेट्स थी, क्यू नॉट और मान लीजिए क्यू वन। ठीक है, तो Q0 को मैं सिंगल 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, Q1 को डबल 1 से करता हूं। मेरा सिग्मा मान लीजिए A, B था, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट करता हूं, इसको डबल 1 से रिप्रेजेंट करता हूं। Q0 मेरा इनिशियल स्टेट है जो कि मेरा 1 ही है। मान लीजिए फाइनल स्टेट में मेरा Q1 आता है जो कि डबल 1 है। मान लीजिए B की बात करते हैं। अब अगर हम B इज माई ब्लैंक, ब्लैंक को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। अगर हमें पता है टेप के ऊपर क्या हो सकता है, सिग्मा भी हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकता है और चेंज्ड अल्फाबेट भी हो सकता है, तो कंफ्यूजन ना हो। ऑलरेडी मैंने सिंगल 1 और डबल 1 यूज कर लिया है, तो B के लिए मान लीजिए मैं ट्रिपल 1 यूज कर लेता हूं। और टाउ मेरा मान लीजिए कि X और Y है, तो इसके लिए मैं 4 1s, क्वाड्रा 1 और यहां पर पेंटा 1 में यूज कर लेता हूं Y के लिए। तो इस तरीके से मेरे Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F एंड B एंड टाउ रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। डेल्टा रह गया है, डेल्टा की बात करते हैं हम। डेल्टा मान लीजिए मैं आप कैसे लिखूंगा डेल्टा को, मान लीजिए मेरा डेल्टा है, डेल्टा ऑफ Q नॉट कॉमा A इज नथिंग बट लेट्स से Q1 कॉमा X कॉमा लेट्स से राइट। आई एम assuming this, right? I'm showing you how you can write a transition in the forms of ones and zeros, and if you can jot down all the transitions, you have represented your Turing machine. That's it. ठीक है, तो अब हम उसको कैसे दिखाएं? मान लीजिए कि Q0 को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं मैं जीरो को एज ए सेपरेटर यूज करूंगा। जीरो विल बी माय सेपरेटर। अगर जीरो मेरा सेपरेटर है तो मान लीजिए फर्स्ट इनिशियली मैंने जीरो डाला, Q0 के लिए 1 लिखा, फिर जीरो डाला, A के लिए फिर से 1 लिखा, फिर जीरो डाला, Q1 के लिए मैं डबल 1s लिखूंगा, ये रहा डबल 1s लिखूंगा। X के लिए मुझे हेक्सा 1 लिखना है, सॉरी क्वाड्रा 1 लिखना है, 4 1s लिख दिए, फिर जीरो लिखा। राइट और लेफ्ट के लिए अभी तक मैंने बताया नहीं राइट और लेफ्ट का, तो राइट के लिए मान लीजिए मैं लिख लेता हूं सिंगल 1 और लेफ्ट के लिए मैं लिख लेता हूं डबल 1s, राइट। तो यहां पर मैं सिंगल 1 ले लूंगा और इस तरह से मैंने एक अपना ट्रांजिशन रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह से सारे ट्रांजिशंस लिख दूंगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि एनी ट्यूरिंग मशीन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस। ऑलराइट, नॉट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस आर ट्यूरिंग मशीन्स। अगेन मैं दोबारा से बोल रहा हूं, नॉट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस आर ट्यूरिंग मशीन, सम स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस
are Turing machines. And those strings I will be storing here in the simulations. सारे ट्रांजिशंस को मैं इसी तरह से रिप्रेजेंट करके स्टोर कर सकता हूं. ऑलराइट, तो ये है मेरी यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की पूरी कहानी. और यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन इज नथिंग बट माय कंप्यूटर सिस्टम. इट कंप्लीटली सिमुलेट्स माय कंप्यूटर सिस्टम. अगर कोई बोले कि मैथमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है. अगर आपको पहला सेशन याद है, हमने डिस्कस किया था कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का क्या मतलब है. मॉडलिंग द कंप्यूटेशनल डिवाइसेस, थ्योरेटिकली मॉडलिंग द कंप्यूटेशनल डिवाइसेस. एंड मेरा कंप्यूटर सिस्टम कैसे मॉडल होगा, ऐसे. ऑलराइट, तो आगे बात करते हैं. अब हमने बात करी ट्यूरिंग मशीन्स. जैसे हमने देखा कि ट्यूरिंग मशीन्स जो होती हैं उसमें हमने देखा हमारी टेप इनफाइनाइट है और हम लेफ्ट और राइट दोनों मूव कर सकते हैं. तो ऐसा जरूरी नहीं है हम हॉल्ट करें. फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करें तो हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं और जैसे ही स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी हम हॉल्ट कर जाएंगे. या फिर पुश डाउन ऑटोमेटा की बात करें, हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे ही स्ट्रिंग मेरी खत्म हो जाएगी हम हॉल्ट करके रुक जाएंगे. लेकिन अगर मैं बात करूं ट्यूरिंग मशीन्स की, तो हम दोनों ही डायरेक्शंस में मूव कर सकते हैं और टेप मेरी दोनों डायरेक्शन से इनफाइनाइट है, तो मैं हॉल्ट करूं ये जरूरी नहीं है. ऑलराइट, तो जैसे एक एग्जांपल है एक नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का, कि अगर ट्यूरिंग मशीन नहीं रुकती है तो उसका कोई एग्जांपल क्या है. तो ये एग्जांपल है. अभी तक हमने ट्यूरिंग मशीन जो डिस्कस करा, a to the power n, b to the power n, a to the power n, b to the power n, c to the power n, वो सारी हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन्स थी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन. जैसे कि मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग है, यहां पर bb है, ये मेरी टेप है. मान लीजिए मेरा स्ट्रिंग है मे बी सिंगल a इज माई स्ट्रिंग. राइट, इनफाइनाइट टेप है, दोनों एंड्स पे इनफाइनाइट बीज है. Initially I am at Q0 and my input pointer is at A. What will happen now is I will go to Q1 and replace A with A and start moving right. ठीक है, so A will be replaced with A and I'll start moving right. I'll come here. Right? Now at Q1 I found a blank. Right? At Q1 I read B. Then what I will do? I will go to Q0, replace B with B and start moving left. I replaced it with B and I started moving left. I have come over here. ठीक है, again let me repeat. At Q0 I read A, I replaced it with A, I moved to the state Q1 and have started moving right. I have come to the symbol B. At Q1 when I read a B, Q1 पे जब मैंने रीड किया कि भैया B आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, B को मैं क्या करूंगा, B से ही रिप्लेस कर दूंगा और मैं Q0 पे आ जाऊंगा और मैं लेफ्ट मूव कर जाऊंगा, मतलब यहां पे आ जाऊंगा. अब एग्जैक्टली अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रिंग को हमने कोई चेंज नहीं किया, हम बिल्कुल वहीं पे आ गए जहां पर पहले थे और Q0 पे सेम चीज रिपीट होगी. आई विल अगेन रीड A, रिप्लेस इट विद A, move right and will come to the state Q1 and again the same thing will repeat. I will keep on repeating, I will keep on moving like this. And nothing will happen. It will go on forever. Forever. There will not be any change. ये हमेशा होता रहेगा, ये रुकेगा नहीं. This is basically a non-halting Turing machine. ठीक है? Alright? तो अभी तक हमने क्या समझा? हमने अभी तो वेरिएशंस देखे हैं और ट्यूरिंग हाइपोथेसिस को देखा. ठीक है, फिर उसके बाद हमने अभी तक क्या समझा? यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन को देखा और अब हमने एक नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन को समझा कि वो कैसी दिखती है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि नॉन हॉल्टिंग और हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन्स के पावर में कोई फर्क है क्या, वो समझते हैं. पर इसको एक बार डायग्रामेटिकली पहले हम समझेंगे कि हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन क्या है और नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन क्या है. जब हम हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की बात करेंगे, दिस इज माय हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन. हॉल्टिंग का मतलब क्या है? जो रुकेगी हमेशा. अगर हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन इज रिप्रेजेंटिंग लैंग्वेज L, इट इज रिप्रेजेंटिंग माय लैंग्वेज L, तब मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर की स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज से बिलोंग करती है तो ये हमेशा स्टॉप करेगा और आंसर देगा यस. अगर की स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती है, इस केस में नहीं करती है, मतलब L कॉम्प्लीमेंट में लाई करेगी. दिस इज माय L कॉम्प्लीमेंट, राइट? दिस इज नथिंग बट सिग्मा स्टार माइनस L.
राइट, दिस इज नथिंग बट एल कॉम्प्लीमेंट। अगर की कॉम्प्लीमेंट में लाई करती है मतलब वो स्ट्रिंग उसमें लैंग्वेज में नहीं लाई करती है तो ये नो देगा और स्टॉप भी करेगा। सो दिस इज माई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। ऑल राइट, दिस इज माई हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ना बात करें अगर हम नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन की। नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन क्या है? जो रुके ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर की स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है तो वो हमेशा रुकेगी। मतलब कि अगर की मेरी स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है तो नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट एंड से यस। और अगर मेरी स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है तो नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन विल आइदर स्टॉप and say no or it will not halt, and this is known as the halting problem of Turing machine. This is known as the halting problem of Turing machine की मतलब कि ट्यूरिंग मशीन रुकेगी कि नहीं रुकेगी हमें नहीं पता। अगर कि स्ट्रिंग लैंग्वेज को बिलोंग करती है तो वो डेफिनेटली रुकेगी और यस बोल देगी, और अगर लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती है तो वो नो भी बोल सकती है, और या फिर वो एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगी। ठीक है, और इसी चीज को हम बोलते हैं हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, ये एक काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि यस भले ही ये हमें डेफिनेटली मिल जाएगा, और नो जो है वो डेफिनेटली नहीं मिलेगा। हो सकता है हम इनफाइनाइट लूप में फंस जाएं, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है काफी बड़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 100 स्टेप्स जो है मशीन को चला देते हैं और उसके बाद क्या आप बोल पाएंगे कि ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, देयरफॉर आई एम सेइंग दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज? नो, यू कैन नॉट से दैट। क्या पता 101 स्टेप पे 102 स्टेप पे वो चीज एक्सेप्ट हो जाए, राइट? ये प्रॉब्लम है, राइट? अब ये जो यस है, अब कितने टाइम्स चलाना है, इस नो और इंफिनिटी की वजह से यस हमारा कब आएगा हमें ये नहीं पता लग रहा है। मान लीजिए 1 करोड़ स्टेप्स हमने चला दिए, क्या मैं बोल सकता हूं कि इट इज नॉट देयर इन द लैंग्वेज? नो, क्या पता 1 करोड़ 1 स्टेप पे एक्सेप्ट हो जाए, राइट? सो दिस हॉल्टिंग प्रॉब्लम ऑफ ट्यूरिंग मशीन इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। रियल लाइफ सिचुएशंस में भी एप्लीकेबल है। मान लीजिए आप किसी चीज के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, आपने 100 यूनिट्स ऑफ एफर्ट डाल दिया, राइट? तो क्या आप मान लेंगे कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी? ऐसा नहीं बोल सकते। क्या पता 101 स्टेप पे हो जाए। तो कितना एफर्ट लगाना है ये जज कर पाना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाट यू नो द रियल लाइफ सिचुएशंस, दैट इज हाउ द रियल लाइफ सिचुएशंस आर, एंड दैट इज वेयर your intellect comes into the picture, that you are the one who has to decide how much effort has to be put in, what is the limit and what is not the limit, right? All those things have to be decided, and this is where the human factor comes into the picture, right? As humans हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कितना एफर्ट लगाना है, और उसके बाद हम अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमें क्या स्टेप लेना है, ये चीजें एज ह्यूमंस हम डिसाइड करते हैं। मशीन्स के साथ तो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं ही, लेकिन एज ह्यूमंस हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। All right, so I just wanted to relate it with the real life examples, but and more than that I wanted to explain this is a very big problem, that although yes is definite, we will definitely get yes, but when we will get yes we do not know, because maybe after 1 crore steps we'll get it, after 10 crore steps we'll get it, we do not know this. All right, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, the languages which are accepted by halting Turing machines, those are called recursive languages, and the languages which are recognized by non-halting Turing machines, they are called recursive enumerable languages. Again, it has been experimentally proven, not experimentally, it has been proven that recursive enumerable languages are non-halting Turing machines are more powerful than halting Turing machines. Recursive enumerable languages set is bigger than the recursive languages. They include all the recursive languages and some extra languages. ठीक है, ये चीज का again proof is beyond the scope of the GATE exam, but you should know this fact. It can be asked in the exam. All right, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, जो मैंने स्लाइड का टाइटल दिया। अगेन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक स्लाइट वेरिएशन के साथ ही हम ट्यूरिंग मशीन से बना देंगे और वो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा क्या है। तो सबसे पहले यहां पे हम समझेंगे इसको। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे मैं ट्यूरिंग मशीन्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोमेटा जो मैंने अभी तक बनाए हैं उन्हें बना सकता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की टेप को फाइनाइट लेंथ पे रिस्ट्रिक्ट कर दूं तो what I will get is basically nothing but finite automata। अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की टेप को रिस्ट्रिक्ट कर दूं उसके लेंथ को तो मुझे क्या मिलेगा? फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है। अगर मैं नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की टेप को स्टैक की तरह यूज करूं, मतलब मेरे पास एनटीएम है और जो मैं टेप को रेस्ट्रिक्ट कर दूं कि आई विल बी यूजिंग दिस एज ए स्टैक ओनली, तो मुझे क्या मिलेगा? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। ठीक है। अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की टेप को मैं स्टैक की तरह यूज करना शुरू कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा मिलेगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन मुझे लेना पड़ेगा। और अगर उसके ऊपर मैं रिस्ट्रिक्शन इस तरह का लगा दूं कि मेरे को टेप कितना यूज करना है जिस पार्ट में इनपुट इज प्रेजेंट। यह चीज इससे डिफरेंट है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि फाइनाइट ऑटोमेटा की बात अगर मैं करूं, ठीक है, यहां पर मैंने बोला कि टेप का लेंथ मैंने फाइनाइट कर दिया, लेंथ इज फिक्स्ड देयर। यहां पर मैं बोल रहा हूं, जब मैं लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा की बात कर रहा हूं तो यहां पर टेप का जो लेंथ है वो फिक्स्ड नहीं है। यहां पर मैंने बोला टेप का लेंथ विल डिपेंड अपॉन द इनपुट। जितना मेरा इनपुट का साइज है उतने लेंथ तक मैं जा सकता हूं। उस चीज को मैं बोलूंगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लेट मी रीड इट अगेन। टेप ऑफ द ट्यूरिंग मशीन टू बी यूज्ड ओनली इन द पार्ट वेयर द इनपुट इज प्रेजेंट। और अगर आप वो एग्जांपल्स याद करें जो हमने ऑलरेडी अभी तक डिस्कस किए हैं, जैसे कि a टू द पावर n, b टू द पावर n, हम कभी भी हम जिस पार्ट में इनपुट है उससे बाहर नहीं गए। मैक्सिमम एक ब्लैंक स्पेसेस तक गए, उससे ज्यादा बाहर नहीं गए। अगर हम बात करें a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, इसमें भी हम जितने पार्ट में इनपुट प्रेजेंट था उतने ही पार्ट में रहे या फिर उससे एक लेंथ आगे पीछे गए होंगे, उससे ज्यादा नहीं जाते हैं। तो अगर जितने पार्ट में इनपुट प्रेजेंट है अगर हम ऐसा कर रहे हैं तब हम इस चीज को हम क्या बोलेंगे? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ऑलराइट, इसे हम क्या बोल रहे हैं? लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ऑलराइट, सो दैट्स कॉल्ड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंटली समझने की है कि द लैंग्वेजेस विच आर एक्सेप्टेड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा दे आर नोन एज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस। और हमने देखा कि a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, ये वाली लैंग्वेज पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्योंकि उसके पास अगर हम एज को पुश कर दें तो हम बीज को मैच कर सकते हैं, पॉप करके एज को पॉप करके हम बी का नंबर मैच कर सकते हैं, लेकिन सी का नंबर नहीं मैच कर सकते। लेकिन हम लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। और इसीलिए हम यह भी बोल सकते हैं कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ज्यादा पावरफुल है पुश डाउन ऑटोमेटा से। क्यों मैं बोल पाऊंगा लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा ज्यादा पावरफुल है पुश डाउन ऑटोमेटा से? किस बेसिस पे बोल सकते हैं? हमारे पास एक लैंग्वेज है जो कि एक सेट में तो नहीं आती, दूसरे सेट में आती है। एक मशीन तो उसे एक्सेप्ट करती है, दूसरी मशीन उसे एक्सेप्ट नहीं करती है। तो मतलब जो मशीन उसे एक्सेप्ट करती है वो मशीन ज्यादा पावरफुल है, बिकॉज पावर इज बेसिकली द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू एक्सेप्ट। द सेट ऑफ लैंग्वेजेस दैट यू एक्सेप्ट इज बेसिकली योर पावर। ठीक है, तो अब हमें यहां पर पता लग गया टेप ऑफ द ट्यूरिंग मशीन टू बी यूज्ड ओनली इन द पार्ट वेयर द इनपुट इज प्रेजेंट। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। तो हम यहां पर बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स, अगर हम ऑर्डर देखें, फाइनल ऑर्डर हम डिस्कस करेंगे, बट हमें अभी तक के लिए समझ में आया कि पुश डाउन ऑटोमेटा से ज्यादा पावरफुल है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, उससे ज्यादा पावरफुल है हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन्स, और उससे भी ज्यादा पावरफुल है नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन्स। अभी तक जो हमने समझा, ट्यूरिंग मशीन ज्यादा पावरफुल क्यों है? क्योंकि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया तो उससे पावर कम हो गई है। अब
अगर हम रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं, हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन, अगर एक रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन का, बाकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर हम हॉल्टिंग का भी रेस्ट्रिक्शन हटा देते हैं तो वो और भी ज्यादा पावर मिलेगी, हमें मिलेगी नॉन हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, अभी तक की ये सारी चीजें आपको मेरे हिसाब से समझ में आनी चाहिए। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस कंडीशंस फॉर लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशंस की बात करें तो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी रहेगा। अगेन जब हम बात करेंगे डीएलबीए और एनएलबीए की, डिटर्मिनिस्टिक एलबीए और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए की, तो हमें इनके बीच में पावर का क्या ऑर्डर है ये हमें नहीं पता है, वी डू नॉट नो। ठीक है, सो दिस इज बियॉन्ड द स्कोप अगेन, एंड इट इज ऑल्सो नॉट नोन टिल नाउ हु इज मोर पावरफुल। ठीक है, बट हमें यह पता होना चाहिए लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कंडीशन हमारी वैसी रहेगी जैसे पहले थी, ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड एंड ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड। अगर हम स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस कंडीशंस की बात करेंगे, द ट्यूरिंग मशीन, क्योंकि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा भी एक तरह का ट्यूरिंग मशीन है जिसमें कि हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि हमारी टेप लेंथ कितनी होगी, जितना हमारा इनपुट का लेंथ है, राइट। तो द ट्यूरिंग मशीन शुड हॉल्ट इन द फाइनल स्टेट। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा हमेशा एक हॉल्टिंग ट्यूरिंग मशीन है, प्लस टेप लेंथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू द इनपुट, राइट। बट अगर मैं इसको बोल दूं कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक एलबीए है, तो हम क्या बोलेंगे, द ट्यूरिंग मशीन शुड हॉल्ट इन द फाइनल स्टेट इन एटलीस्ट वन ऑफ द पाथ्स। इन एटलीस्ट वन ऑफ द पाथ्स, पहले हम बोल रहे थे शुड हॉल्ट फाइनली, यहां पर इन एटलीस्ट वन ऑफ द पाथ्स, बिकॉज यहां पर मल्टीपल पाथ्स हो जाएंगे। यहां पर एक ही पाथ था, शुड हॉल्ट इन द फाइनल स्टेट, यहां पर मल्टीपल पाथ्स हैं तो शुड हॉल्ट इन एटलीस्ट वन ऑफ द पाथ्स। स्ट्रिंग एक्सेप्टेंस कंडीशन सेम ही, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस कंडीशन सेम ही रहेंगी। ऑल द स्ट्रिंग्स इन द लैंग्वेज शुड बी एक्सेप्टेड एंड ऑल द स्ट्रिंग्स नॉट इन द लैंग्वेज शुड बी रिजेक्टेड। बहुत सिंपल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ऑलराइट, अब बात करें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस की। हमारे पास हमने डिस्कस किया लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा जिन लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करता है उन्हें कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस कहते हैं। हमने एग्जांपल भी देखा, a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n। इसी तरह से a टू द पावर, अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैं ब्रीफली आप लोग को बता रहा हूं। ये एग्जांपल्स का सभी का प्रूफ आपको, सबके लिए लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। बिकॉज लैंग्वेज पेपर में सवाल कैसे आएगा, क्या ये लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है कि नहीं है। ये कुछ लैंग्वेजेस हैं जो मैंने बताई है, कुछ के बारे में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा आप बना सकते हैं। बट बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप सभी का बना के देखें, एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए जिससे कि आप क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अभी जैसे हम देखें a टू द पावर n, b टू द पावर n, c टू द पावर n, d टू द पावर n, ये भी हो जाएगा कैसे, यहां पे हमने इसको x से किया था, इसको y से, इसको z से। मान लीजिए अगले केस में हम w x y z से रिप्लेस करेंगे और नंबर्स को मैच कर लेंगे। और ये कितने भी अल्फाबेट्स हम यहां पर लिख सकते हैं, कितने भी सिंबल्स हम यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारे कंपेरिजन हम कर पाएंगे। दिस इज L1, दिस इज L2। L3 की बात करें तो यहां पर प्रॉब्लम आई थी, हम PDA से इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि हमने पहले मान लीजिए a को पुश कर दिया, फिर B को पुश कर दिया। अब हमें C के जो नंबर्स हैं वो मैच करने हैं A से, बट बीच में तो B है, कैसे करेंगे? तो ये चीज यहां नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास Q जितनी पावर है जो कि लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा प्रोवाइड करता है, तब मैं कर सकता हूं A को C से मैच और B को D से मैच। मैं इन द Q में A से C को मैच करने के लिए आगे जा सकता हूं और B से मैच करने के लिए B को D से मैच कर सकता हूं, आगे पीछे में मूव कर सकता हूं। तो ये भी हो जाएगा। A टू द पावर n, B टू द पावर n स्क्वायर, जो कि मेरा पुश डाउन ऑटोमेटा नहीं कर पाया, ये कर पाएगा। यहां पर n स्क्वायर भी एक्सेप्ट हो जाता है, राइट। a to the power p, that is where p is prime, again push down ऑटोमेटा नहीं कर पाए, यहां हो जाएगा। a to the power p where p is composite, यहां हो जाएगा। a की पावर n फैक्टोरियल यहां भी हो जाए, यहां पर ये भी हो जाएगा। a की पावर n स्क्वायर ये भी हो जाएगा। a की पावर n क्यूब ये भी हो जाएगा। a की पावर 2 to the power n, this is also acceptable। ww जैसे मैंने बात की थी कि पुश डाउन ऑटोमेटा मेरा ww को नहीं कर पा रहा था एक्सेप्ट, क्योंकि हमने अगर w को नीचे डाल दिया, मान लीजिए a b है, तो अगर मैं a b को पुश कर दूं तो अब इस a को मुझे इससे मैच करना था जो कि नीचे है। स्टैक वाज फर्स्ट इन लास्ट आउट, तो अभी अगर मैं q यूज करूंगा तो ww को इजीली कर सकता हूं, तो ww विल बी एक्सेप्टेड। सिमिलरली आप w, wr, w बीच में कुछ भी कॉम्बिनेशन लगा दें, यू कैन एक्सेप्ट इट। सिमिलरली w टू द पावर n, कोई भी कॉम्बिनेशन हो, इट्स फाइन। एनी नंबर ऑफ टाइम्स w इज फाइन। Any number of times w is fine।
ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं चोम्स्की हायरार्की, फाइनल हायरार्की ऑफ द लैंग्वेजेस, जो कि अभी तक हमने डिस्कस की, वो एक बार ब्रीफली हम डिस्कस कर लें, एंड दैट विल कंक्लूड आवर और ऑल द सेट ऑफ लैंग्वेजेस, ऑल द टाइप ऑफ ऑटोमेटा दैट वी हैव इन आवर सिलेबस, राइट. सो बेसिकली अगर हम बात करें रेगुलर लैंग्वेजेस की, दे आर एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा एंड दे आर जनरेटेड बाय रेगुलर ग्रामर्स. बात करें डीसीएफएल्स की या डीसीएफएल और सीएफएल, अगर दोनों की बात करें, दे आर जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, but DCFLs are accepted by DPDA and CFLs are accepted by NPDA. When I say CFL, it includes both DCFL as well as NCFL, that is non-deterministic context-free languages. All right. Context-sensitive languages की अगर मैं बात करूं तो they are accepted by LBA and they are generated by context-sensitive grammars. Recursive languages की मैंने बात की तो recursive languages they are accepted by STMs. Recursive enumerable languages they are recognized by non-halting Turing machines, but they both are generated by unrestricted grammars, right? All right, they are both are generated by unrestricted grammars, right? So that's all about this session, guys. What we studied in this session is we understood about the Turing hypothesis, what are the variations in the Turing machine. We also understood about the universal Turing machine. Then we studied about halting Turing machine and non-halting Turing machines. We understood that the halting Turing machines, they are accepting the languages which are called as recursive languages, and non-halting Turing machines are recognizing the languages which are called recursive enumerable languages, right? Then we studied about what is known as linear bounded automata, and we studied that they are accepting languages called context sensitive languages, and then we finally studied the Chomsky hierarchy, right? So we have already talked about finite automata, we have already talked about regular expressions, we have talked about grammars, we talked about push-down automata, and we also talked about Turing machines. In the next session, we will be talking about countability in detail, in which we will try to see, is there a world beyond the languages that we have already seen? That is there a world beyond recursive enumerable languages, or how big is that world? That we will also study in the next lecture. All right. So I'll see, and these are the details of some of the upcoming sessions. I'll see you guys in the next session. Thank you so much, guys.